Good morning, dear students. Today we are starting with the new chapter, data handling. Here we have gathered to discuss the how to handle the data. You know what is data? In previous class, you people have read about data and organizing it by using tally marks. You people have used tally marks to organize the data. Organization means the tabulation of data, making tables out of the given raw data. Clear? And next, you people have also some examples taken to collect the data also, and then to organize and then to visualize the data using bar graphs. Clear? In previous class you have studied bar graph, you have studied pictograph. Pictographs and bar graphs are just to visualize the data. By seeing, by looking at the graph, we are able to get some information from the data. Clear? So data handling involves some steps. What steps? First, the very first step is the collection of the data. In so many cases, you are provided with the given data. The book, the questions have the data given. Clear? What to do? At your side is कि you are to arrange the data in the tables by using telemarks, or you are to use the data to visualize the data. Clear? Like bar graph or pictograph. Today we are moving on with the topic data handling. In this chapter we are here to learn about some representation of the values. Clear? आगे जाके हम इन्हें measures of central tendency भी पढ़ेंगे. What are these? These are the one representation, like you as a monitor represents the whole class. Clear? A monitor is representing class 7B. That any information regarding 7B is provided to the monitor, and then monitor passes to the whole class. Clear? Like that, here we have some representations of the data. I have, as you can see, that I have written some names: arithmetic mean, range, mode, and median. Clear? These four names, clear, are here to represent the data. This is arithmetic mean, range, mode, and median. These are the values, one value, which represent the whole data. Clear? तो ये हम इस क्लास में सीखेंगे, इस चैप्टर में सीखेंगे. Then we have studied bar graphs, but now we will study double bar graphs. मतलब एक ही ग्राफ में दो बार बनाएंगे. Why? For comparison. Clear? Then we will learn about some chance and probability. Hopefully you people have learned this name or before, but I think this is the new concept for you. This is the chance and probability. So let's start with the chapter. First, I want to introduce some of the facts. What are the introduction? फिर से वही बात है कि पहला स्टेप जो डाटा हैंडलिंग है, involves certain steps. First is the collection of the data. Clear? Normally you people have that collection in your books, and some of the teachers has given you the data to collect.
मैं भी एक आध क्वेश्चन देने वाली हूँ तुम्हें फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। क्लियर? इसमें क्या करते हो, मतलब होता क्या है कि क्वेश्चन आपका बना बनाया आएगा। जैसे आप अपनी क्लास 7B के सारे बच्चों की हाइट नोट करना चाहते हो। क्लियर? तो हाइट नोट करोगे आप, एक एक बच्चा खुद हाथ खड़ा करके अगर आपको अपनी हाइट बता देता है, यू आर जस्ट नोटिंग डाउन। सेकेंड थिंग इज टू go and you just measure everybody's height, like in school, some in medical, ठीक है, you are doing that. And third is कि you go to your class teacher, she has the recorded data of all the heights of all the students, and just you collect all the data from there only. Clear? So these are the types how we can collect. आइदर इसे दो तरह से बोलते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी व्हेन यू गो टू इंडिविजुअल टू कलेक्ट द डाटा, सेकेंडरी व्हेन यू जस्ट हैव द रिकॉर्डेड डाटा फ्रॉम समवेयर। क्लियर? तो ये सेकेंडरी डाटा हो जाता है। तो डाटा कलेक्ट करने के बहुत सारे वो हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन जैसे अभी हम रोज़ के रोज़ न्यूज़ में कोविड का डाटा चेक करते हैं, कोविड-19 में कहाँ कितने लोग और नए केसेस आ गए, कितने लोग अभी भी क्वारंटीन में है, कितने लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ द डाटा। हाउ दे विल सर्वे द डाटा, ये पॉइंट आप ज़रूर सर्व करोगे। क्लियर? और कहीं पे हमने क्या लिया कि आपने हाइट्स और वेट्स मेजर करने हैं, मार्क्स, स्कूल में आप कितने सारे टेस्ट देते हो। ठीक है, वी आर नॉर्मली टू कलेक्ट द डाटा कि आपके वो सबकी आंसर शीट देने से पहले हम रिकॉर्ड करते हैं कि हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर। ठीक है, तो ये होता है कलेक्शन ऑफ द डाटा। सो मैनी थिंग्स अराउंड। देन इज नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, कलेक्ट कर लिया तो अब क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। उसे ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, आप नॉर्मली ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, यूजिंग, ठीक है, टेली मार्क्स। ठीक है, आप टेबल्स बनाते हो, टेबल्स यूजिंग टेली मार्क्स। क्लियर? तो आप टेबल, उसी डाटा को एक टेबल सा बनाते हो। अब दो तरह के टेबल बना देते हो। क्लियर? इसमें भी आगे जाके पढ़ोगे आप कि कैसे बनाते हो। या तो आप यहाँ टेली मार्क्स लिख लेते हो, उसी टेली मार्क्स को आप क्या करते हो, नंबर में लिखते हो, जिसे आप आगे जाके क्या पढ़ोगे, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, ये वो है जैसे आपने हाइट है, ठीक है, जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो, आपने हाइट वो की। अब आप चेक करोगे कि आपके पास अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 स्टूडेंट्स की हाइट सेम नहीं होगी। ठीक है, किसी का 0.5 का डिफरेंस है, हो सकता है 2 बच्चों की या 4 बच्चों की सेम हो जाए, पर 40 बच्चों की हाइट सेम नहीं होने वाली। तो आप क्या करते हो कि या तो स्टैंडर्ड साइज़ ले लेते हो 141 सेंटीमीटर, अगर 7th क्लास में देखो तो 140 से या 130 से लेके 150 तक वेरी करेगी। तो आप उसे एक एक नंबर लिख के भी लिख सकते हो। पर कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत वेरिएशन के साथ होते हो तो आप उसे वो ग्रुप्स बना लेते हो कि 130 से 135 के बीच में कितने हैं, फिर 135 से 140 के बीच में कितने हैं, फिर 140 से 145 के बीच में कितने हैं, एंड देन 145 से 150 के बीच में कितने हैं। तो यू जस्ट मार्क द नंबर्स, आप डाटा से देखते जाते हो और टैली मार्क्स कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो आप ग्रुप्स बना लेते हो 5-5 के, एंड देन यू राइट द नंबर हेयर। ठीक है, वो टोटल किसके साथ मैच करना चाहिए, जितने स्टूडेंट्स के साथ आप सर्वे कर रहे हो। क्लियर? तो दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। क्लियर? देन
जो हमारा इस चैप्टर का काम है कि यहाँ अब इसके बाद हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है यहाँ पे। तो एक बाय अ सिंगल वैल्यू, जिसको अब हम सीखेंगे कैसे। एक वर्ड है मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। ये जो 4 वर्ड्स हैं ये किस में आते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग, दे आर द मॉनिटर्स ऑफ द गिवन डाटा, क्लियर। वो एक रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप रोज़ कोई कभी अगर एक हफ्ते का डाटा नोट करो कि आप कितने घंटे टीवी वॉच करते हो, या कितने घंटे मोबाइल पे गेम्स प्ले करते हो, या कितने घंटे पढ़ते हो, क्लियर। तो आप रोज़ कैलकुलेट कर रहे हो टाइम देख के कि आज मैं 1 घंटा 30 मिनट पढ़ा, कल मैं 2 घंटा 10 मिनट पढ़ा था, फिर मैं 3 घंटे 20 मिनट पढ़ा, फिर मैंने आधा घंटा ही स्टडी की है। यू हैव नोटेड डाउन द आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स यू हैव स्टडीड फॉर द होल वीक। एंड कि आपको अगर किसी ने पूछा तो कि तुम कितने घंटे पढ़ लेते हो, तो फिर तुम्हारा जवाब क्या होगा, मैं कभी 2 घंटे पढ़ता हूँ, कभी 3 घंटे पढ़ता हूँ। नो, आप क्या करोगे, ऑन एन एवरेज, कि मैं अंदाज़ा कितना पढ़ता हूँ डेली का क्या एवरेज है, मैं वो वाला नंबर बोलती हूँ कि मैं कम ऑलमोस्ट 2 घंटे पढ़ ही लेता हूँ, या ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पढ़ ही लेता हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट अ single value to the whole data you have collected for yourself, clear। और दूसरा representation क्या होता है, graphs। ग्राफ्स में आप कि सीधा आपको कर्व देख के पता लग जाता है कि ये मंडे को ये बच्चा इतनी देर पढ़ा, ट्यूसडे को ये बच्चा सिर्फ इतनी देर पढ़ा, और वेडनेसडे को ये 4 घंटे पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ देख के पता लग जाएगा कि किस दिन इसने ज़्यादा पढ़ाई की और किस दिन इसने कम पढ़ाई की। तो दिस इज़ हाउ यू टेक द डाटा इनटू and handle it and get the information. The main objective for the data handling is to get some proper concrete information out of the collection and organization and representation of the whole data, clear। तो बढ़ते हैं आगे हमारे पहले representing value के साथ, that is the arithmetic मीन। अभी हमने बात की कि कैसे अर्थमेटिक मीन को हम एक वैल्यू की तरह चेक करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं, क्लियर। कि अभी मैंने बात की कि आप डेली अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हो और फिर अंदाज़न से बोल रहे हो कि नहीं मैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटा या 2 घंटे पढ़ लेता हूँ। उसको अब एक्चुअल फाइंड करने का क्या मेथड है कि जब आप सारी ऑब्जर्वेशन लेते हो, मान लो मंडे की ऑब्जर्वेशन है कि आप कितने घंटे पढ़े, ये आवर्स पढ़े, फिर ट्यूसडे की ऑब्जर्वेशन है कि आप 2 घंटे पढ़ लिए, ठीक है। फिर वेडनेसडे की ऑप्शन है कि आपका अच्छा वो इंग्लिश का अच्छा चैप्टर चल रहा है या हिंदी का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है, तो उसे पढ़ते पढ़ते आपने 2.5 घंटे भी लगा लिए, ठीक है। फिर आप थर्सडे पे आप कुछ साइंस का कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ से बाहर है, ऊपर से जा रहा है, तो आपने 40 मिनट्स में ही काम ख़त्म कर दिया, क्लियर। फ्राइडे को आपने पीछे का कंपनसेट करने के लिए और पुश करने के बाद आपने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा और प्रॉबेबली 2 घंटे पढ़ ही लिया, ठीक। तो सैटरडे क्योंकि वीकेंड है, थोड़ा फन लेते हैं हम ज़्यादा, वीकेंड पे छुट्टी जैसा माहौल, तो आपने सिर्फ 1 घंटा पढ़ के काम ख़त्म कर दिया। तो अब मैं क्या आंसर दूँ, आप कितनी देर पढ़ते हो डेली, क्लियर। तो उसे करने के लिए
आप क्या करोगे कि आपने कितने दिन का कलेक्ट किया डाटा, 1 2 3 4 5 6 डेज़ का डाटा कलेक्ट किया, और आपने क्या किया कि कितने घंटे मैं रोज़ पढ़ता हूँ उसका टोटल कर दिया। जब आप उसका टोटल करते हैं और उसे 6 से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं, लेट अस चेक कितने घंटे आप पढ़े, 2 और 1 3 आवर्स, 5 7 8, और मिनट कितने हो गए, 8 और ये 30 और 30, 9 आवर्स, 9 आवर्स 40 मिनट्स आप पढ़ रहे हो। तो अब मुझे व्हाट्सएप करके बताओगे कि तुमने अब ऑन एन एवरेज इसे डिवाइड करके कितना आंसर निकाला। आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर कि आप डिवाइड कैसे करते हो, आपको टाइम को डिवाइड करना आता है, आवर्स मिनट्स को कन्वर्ट करना आता है। ये आपका आज का वर्क है जो मुझे अभी बताओगे। सो आई गॉट द फॉर्मूला, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी, क्लियर, और कितने दिन, कितने महीने, कितने मिनट आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? तो वी कैन स्विच ओवर टू द एक्सरसाइज। एक और जो सेकंड आपको पढ़नी है, रेंज। कई बार हम प्राइस की बात करते हैं कि आपकी रेंज क्या है। आपसे कभी भी शॉपकीपर जब आप कुछ खरीदने बोल जाते हो तो आपको पूछता है कि आपकी रेंज क्या है। कोई भी चीज़ आप देखते हो कि रेंज क्या है, कि वो मिनिमम और मैक्सिमम से स्टार्ट करे। क्लियर? तो रेंज इज़ व्हाट, कि आपने जो भी खरीदना है उसका अगर आपको हाईएस्ट आपका पता हो कि मेरे पर्स में तो 2000 रुपये ही है, ठीक है, और कम से कम तो मैं 2 रुपये की चीज़ भी खरीद सकती हूँ। तो हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को अगर आप माइनस कर देते हो तो दैट विल गिव यू द रेंज ऑफ द डाटा। आपको पता होगा कि आपकी रेंज क्या है, कि मेरे पास मैक्सिमम 2000 है, मिनिमम मैं कुछ भी खर्च कर सकता हूँ। तो उससे मेरी रेंज पता लग जाएगी कि मैं कोई भी चीज़ खरीदने जा रही हूँ, अगर मुझे 4 चीज़ें खरीदनी है तो मैं उसी 2000 को डिवाइड करके रखूँगी कि वो इतने का आएगा, वो इतने का आएगा, तो मुझे ये देखना है। तो फिर मेरी रेंज उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो आपका रेंज का मतलब व्हाट इज़ रेंज, कि आपने चेक करना है। जैसे आपने हाइट्स मेजर की थी कि मैक्सिमम हाइट एक बच्चे की 7th में आ रही है 160 सेंटीमीटर। बास्केटबॉल खेलता है, रोज़ प्रैक्टिस करता है, रोज़ ऊपर बढ़ने की अर्ज करता है, रोज़ उस बास्केट में बॉल डालने की अर्ज करता है, तो वो धीरे 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 बढ़ेगा और अच्छी हाइट ले लेगा। और जो आलसी है, बैठा रहता है, नहीं काम करने की भी कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को भी हिंडर करता है, तो उसकी हाइट भी छोटी रह जाती है। सोच लो, अब आलसी लोग छोटे रह जाते हैं कभी कभी। तो आपकी रेंज पता लग जाएगी कि इस 7th क्लास में यहाँ से यहाँ तक के बच्चे हैं, तो टोटल डिफरेंस इनका 20 सेंटीमीटर का है या 25 सेंटीमीटर का है। क्लियर? तो मान लेते हैं कि 162 सेंटीमीटर वाला सबसे बच्चा बड़ा है, हालांकि अच्छी हाइट होती है ये, और कोई आलसी बच्चा 135 सेंटीमीटर में ही। तो ये कितनी रेंज है आपके पास? तो ये 27 सेंटीमीटर की रेंज हो जाएगी। आपको आइडिया लग जाएगा कि इतने सेंटीमीटर इस उम्र के बच्चे चेंज हो जाते हैं। सो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, आई एम मूविंग एक्सरसाइज लेते हैं। वी हैव एक्सरसाइज 3.1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो अभी व्हाट्सएप क्लास में करेंगे। आप हाइट बताओगे अपनी अपनी और फिर हम रेंज निकालेंगे। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? मेरे पास डाटा है
उसने कहा ऑर्गेनाइज द डाटा इन द टेबुलर फॉर्म. नाउ हाउ टू ऑर्गेनाइज. 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7. अब आप देख रहे होगे कितने सारे जो है यहाँ पे कितने सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. आई एम कैलकुलेटिंग इट अगेन. मेरे पास 20 नंबर्स हैं. लेट अस काउंट. 1 2 3 4. तो दीज आर 20 नंबर्स. क्लियर. तो पता होने चाहिए. अब उसने कहा है ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म. तो पहले हम टेबल बनाएंगे. अब हम इसे क्या है हमारा टेबल कैसे वो करेंगे कि तो पहले हमारे पास ये क्या गिवन है. ये मार्क्स गिवन है. मार्क्स गिवन है और हम इसे कैसे लगाएंगे. ऑर्गेनाइज हमेशा करना है रॉ डाटा को तो टेली मार्क्स यूज़ करके करना है. ठीक है. इसी टेली मार्क्स को जब आप एक नंबर में लिख देते हो तो उसे आप फ्रीक्वेंसी बोलते हो. क्लियर. तो मेरे पास अब नंबर क्या क्या है. मैं पहले सबसे छोटा चेक करूँगी. 1 है और सबसे बड़ा 9 है. तो मुझे यहाँ पे सारे नंबर आपके पास लाइंस बनी हुई हैं तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील. आप एक एक लाइन भी बना सकते हो. दैट यू हैव दोज लाइंस इन योर कॉपी नोटबुक. तो चलिए देखते हैं अब टेली मार्क्स कैसे लगाते हैं. कई बार कोई बच्चा क्या कहता है 1 कितने हैं देखो देखो और वहाँ लिख देते हैं. नो, इट इज़ अ रॉन्ग क्राइटेरिया. हमेशा गलती करोगे उसमें. तो आप कैसे चेक करोगे. फर्स्ट इज़ 4. क्लियर. 4 को कैंसिल कर दो. यहाँ एक मार्क लगा दो. देन इज़ 6 का मार्क लगा दो. देन इज़ 7. देन इज़ 5. क्लियर. देन इज़ 3. 5 फिर से आ गया. देन इज़ 4 5 2. देन इज़ 6 2 अगेन. देन इज़ 5. देन इज़ 1. देन इज़ 9. साथ साथ काटते जाओगे तो ये अब देखो 4 के बाद जो 5वां 5 आया है इसको आप ऐसे करोगे ताकि दूर से पता लग जाए कि हमारे 5 के ग्रुप्स हमें दिखाई दे देते हैं. जस्ट टू हैव द क्विक काउंटिंग हम ये करते हैं. 8 काट दिया. देन इज़ 4. देन इज़ 6 एंड देन इज़ 7. तो हमने सारे नंबर्स को लिख दिया. तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है. 2 1 3 5 4 2 1 एंड 1. टोटल चेक करो. 1 और 2 3 4 3 7 12 16 18 and 20. So we have the total here is 20. So that matches with the given data. So this is how to organize the data. ये आपका solution part है. अब first question उसने कहा है which number is the highest. Now which number is the highest? 9 is the highest number. दिखाई दे रहा है. Which number is the lowest? Definitely हमने पहले ये कर लिया. 1 is the lowest number. What is the range of the data? Range क्या करेंगे?
ये रेंज क्या फॉर्मूला था, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, क्लियर। तो हाईएस्ट इज 9 minus 1, clear, तो that is 8. What is the arithmetic mean? अब बेटा ये अर्थमेटिक मीन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप चेक करो, मुझे ये सारे प्लस करने हैं, क्लियर। और अब मैंने क्योंकि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर लिया, मुझे पता है कितनी बार क्या नंबर है, तो इसका मीन एक तो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या करोगे, सारे नंबर 4 + 6 + 7 + 5 + 3 ऐसे सारे लिख के डिवाइड कर सकते हो। एंड आई कैन डू वन स्मार्टर थिंग कि मुझे पता है कि 1 कितनी बार है, 1 बार, तो मैं इसे कितना लिखूँगा, ये एक बार है तो 1 × 1 = 1, प्लस 2 कितनी बार है, 2 बार 2 है तो 2 + 2 4 हो गया दिस। 3 कितनी बार है, 1 बार। 4 कितनी बार है, 3 बार है तो 4 4 4 12 हो गए। 5 कितनी बार है, 5 टाइम्स है तो 5 बार 5 काउंट करेंगे तो 25 हो गया, ठीक है। 6 कितनी बार है, 4 बार, 6 4 बार काउंट करेंगे तो 24 हो गया। देन 7 इज 2 टाइम्स 14, देन 8 इज 1 टाइम एंड 9 इज 1 टाइम। अच्छा, नंबर हमने टोटली काउंट किए ना 20 के 20, तो ये 20 से ही डिवाइड होगा। तो लेट अस चेक कि क्या आंसर आता है। फटाफट से चेक करके बताओ, मैं भी करती हूँ। अब इसे देखो, इस और एक स्मार्टनेस मैम तुम्हें बताए क्या करते हैं। आई एम टेकिंग द डिफरेंट कलर नाउ। क्या करते हैं, ये 25 है, ये 24 और 1 25 25, यहाँ रफ वर्क में आप कर सकते हो। ये 25 एक था, 24 और 1 मैंने एक और पेयर 25 का बना लिया। मैं पेयरिंग कैसे कर रही हूँ कि मेरे पास क्या आए, ज़ीरोज़ में या वो वाला नंबर आए। 12 और 8 मैंने काउंट कर लिया, 20 हो गए, ठीक है। साथ साथ मैं उसे अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि मैंने क्या क्या काउंट कर लिया, क्लियर। अब जो बचे हैं उसे चेक करते हैं कि 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 14 कितने हो गए, अगेन 30। तो ये ओरल जो कैलकुलेशन है, जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें हेल्प करेगी। तो दिस इज़ व्हाट 25 25 50 70 एंड दिस इज़ 100। तो मेरे पास कितना आ गया टोटल, 100/20 एंड विच इज़ 5। तो 5 इज़ द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द होल डाटा, क्लियर। तो ऑन एन एवरेज मार्क्स कितने हैं, 5 नंबर, 5 के आसपास सबके आए हैं, क्लियर। तो ये आपका बहुत वो बन जाता है, क्लियर। तो आई एम लीविंग क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू टू फाइंड द मीन स्कोर। ये कुछ ही नंबर्स हैं जिसको आप प्लस करोगे और डिवाइड करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, उसने कहा मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 1 से शुरू कर देते हैं, बट वो हमें क्या बोला है, होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, ठीक है। तो मीन क्या होगा, डेफिनेटली 0 + 1 + 2 + 3 + 4। ये पहले 5 होल नंबर्स हैं, तो 5 हैं तो 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो कितना आ गया, 4 3 7 2 9 1 10, 10/5 विच इज़ 2, क्लियर। तो इट्स अ गुड एक्सरसाइज आपके लिए। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 छोड़ रही हूँ, ठीक है। फिर बाकी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करते हैं अपनी क्लास में, क्लियर। थैंक यू।